Hi, this is Sunil Gupta. Here in this session, we are going to see sum number 7 from Bill of Exchange chapter. Students, here we are having two parties, Priyanka owed Meena. Priyanka accepted a bill drawn by Meena, and here a journal entry is given. They have told that give journal entries in the books of Meena. So we'll have here Meena's me in the books of Meena. Meena is drawer. We'll read full sum. Okay, then it is given over here that Priyanka accepted a bill drawn by Meena. That the bill no student bill no that bill was drawn by Meena for amount means how much is the amount? Amount is this much 18,000 at 4 months. Then Meena endorsed the same bill to Sagar. Okay, students, the bill is endorsed to Sagar. So we are having entry of endorsement over here. Here the bill is accepted. First entry. Second entry will be for endorsement. Before the due date, Priyanka approached to Meena for renewal of the bill, and then we are having 4 entries of renewal of bill. Okay. Meena agreed on the condition that rupees 6,000 be paid immediately together with interest on the remaining amount of 8% per annum for 3 months, and Priyanka should accept a new bill for the balance. These arrangements were carried through. That means ये जो सिलसिला है ये चलता रहा. However, before the due date, Priyanka become insolvent. Okay. Priyanka became insolvent and only 50% of the amount could be recovered from her state. So we are having entry over here, 2 entries. For recovering the amount. Okay, so and we are having entry for accepting the bill, then endorsement, then renewal, and finally a recovery of the amount. So see, Meena is drawer over here. Meena is drawing the bill, so Meena is the drawer. We'll start posting the entry, and you all are requested to look at your mobile screen carefully. So first entry we are having, that is first entry will be, स्टूडेंट सी आई टेल यू वन थिंग दैट ये जो मीना है ना, मीना की बुक में एंट्री आपको पास करनी है और मीना इज ड्रॉवर. अब मीना के लिए वो बिल है ना, बिल्स रिसीवेबल रहेगा क्योंकि मीना ड्रॉवर है. मीना को बिल का अमाउंट रिसीव होना बाकी है, इसलिए मीना के लिए वो बिल्स रिसीवेबल होगा. तो विल राइट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट अमाउंट इज 18,000 टू, किसने वो बिल दिया है? That bill is given by Priyanka. Okay, so Priyanka account will be credited and narration will be being bill is received for how many months? Bill is received for 4 months. ठीक है. Now entry will be for endorsement. Entry number 2 will be for endorsing the bill. So whom the bill is endorsed? The bill is endorsed to Sagar. Sagar is receiver. So Sagar's account debit 18,000 to bill is going out. So bills receivable account edit 18,000
narration will be being bill is endorsed to Sagar, या फिर only bill is endorsed चलेगा. Now entry number 3. See, now entry number 3 will be for renewal of the bill, and for renewal of the bill you have to cancel the old bill. I'll write here heading only for your reference. मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए ये हेडिंग लिख रहा हूँ, अदरवाइज बोर्ड में इस हेडिंग की ज़रूरत नहीं होती है. कैंसलेशन ऑफ प्रीवियस बिल. प्रीवियस बिल मतलब यही जो ऊपर आप देख रहे हैं ना 18,000 वाली, वही एंट्री है. ओके, तो बिल कैंसिल करनी है तो क्या एंट्री आएगी? मैंने आपको पहले बताया था, हमेशा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट हो जाता है वेन एवर बिल इज कैंसल्ड और बिल इज डिशॉर्ड. ऑलवेज रिमेंबर, डेबिट द अमाउंट ऑफ बिल वॉज 18,002. बिल किसके हाथ में था? सागर के हाथ में था. सागर अकाउंट 18,000 being bill is cancelled. बस. नेक्स्ट एंट्री नंबर 4. ना अब इसमें हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे. हम लोग, मैं एंट्री पास करके रख देता हूँ, अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको. तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री आएगी. तो एंट्री होगी किसके ऊपर? हम लोग ने एंट्री चार्ज किया है, हम लोग ने एंट्री चार्ज किया है प्रियंका के ऊपर. सो प्रियंका अकाउंट डेबिट टू, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इनकम है मीना के लिए, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. बीइंग इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर न्यू बिल का अमाउंट कितना है? आई मीन मंथ्स कितना है? 3 months. फॉर 3 months. यहाँ पर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट भी लिखना है @ 8% पर एनम. at 8% पर एनम. चलो ठीक. अभी पार्ट पेमेंट रिसीव की एंट्री आएगी, एंट्री नंबर 5. पार्ट पेमेंट की एंट्री आएगी. पार्ट पेमेंट में कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना है वो बाद में लिखेंगे. 2 किसने दिया? प्रियंका ने दिया, इसलिए प्रियंका अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. नरेशन being part payment is received. अभी यहाँ पे लिखना रहता है इंटरेस्ट के साथ आया कि नहीं आया, वो हम लोग लिखेंगे बाद में. फिर बाद में आएगा एंट्री फॉर रिसीविंग न्यू बिल. मैं ये टाइम में थोड़ा अलग वे में कर रहा हूँ. मैं ये टाइम में पहले सब एंट्री पास कर ले रहा हूँ, बाद में अमाउंट लिखूँगा. अब न्यू बिल की एंट्री आएगी. न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2 किसने दिया? प्रियंका ने दिया, तो प्रियंका अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बीइंग न्यू बिल इज रिसीव्ड. अभी यहाँ पे लिखना होता है न्यू बिल इंटरेस्ट के साथ आया या कैसे आया वो लिखना होता है. ठीक है, अब हम लोग अमाउंट पुटअप करेंगे. तो देखो, मीना अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 6,000 बी पेड इमीडिएटली. तो 6,000 ये पार्ट पेमेंट है. पार्ट पेमेंट की जो एंट्री है ना, कैश और बैंक अकाउंट यहाँ पर आएगी. इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट. ओके, पार्ट पेमेंट इंटरेस्ट के साथ आया है,
तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 8% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। तो देखो यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अभी 18,000 का टोटल अमाउंट है, उसमें से 6,000 पार्ट पेमेंट आ गया। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया? 12,000। अब हमको 12,000 पे इंटरेस्ट निकालना है। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 8% है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 8%। कितने महीने का ये जो रिमेनिंग अमाउंट है जिसके ऊपर बिल बनने वाला है, न्यू बिल, तो वो न्यू बिल कितने महीने का है? दैट न्यू बिल इज फॉर 3 मंथ्स। सो 3/12 आएगा। तो ये आपका आ जाता है 240 रुपीज़। अब ये 240 ना इंटरेस्ट है। देखो सब पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो गया है। इंटरेस्ट का हम लोग डाल देंगे अमाउंट 240। 240 यहाँ पर भी डाल दिया। पार्ट पेमेंट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? पार्ट पेमेंट बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो पार्ट पेमेंट इंटरेस्ट के साथ आया है, तो 6,240 यहाँ पे, एंड हियर टू 6,240। ओके। और जो न्यू बिल है वो बैलेंस अमाउंट का बनना है। बैलेंस अमाउंट मैंने देखो यहाँ पे लिखा है 12,000, तो 12,000। ओके, चलो हो गया। वी हैव डन एंट्री फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। नाउ यहाँ पे देखो वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो गया है और 50% अमाउंट ही रिकवर हुआ है। सो यू नीड टू पास फर्स्ट एंट्री फॉर कैंसलिंग द बिल और फॉर डिसऑनरिंग द बिल। और मैंने आपको बताया था जब भी एंट्री आपको डिसऑनरिंग ऑफ द बिल या कैंसलेशन की एंट्री पास करनी होगी, देखो मैंने यहाँ पे क्या डेबिट किया है? ड्रॉवीज अकाउंट। ऑलवेज ड्रॉवीज अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो आई विल राइट हियर Priyanka account debit. Always whenever the bill is to be cancelled, Drawi's account will be debited, and credit bill bill receivable account credit होगा। न्यू बिल्स रिसीवेबल हम लोग करेंगे, लिखेंगे न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट विल रिमेन सेम। यहाँ पे लिखेंगे being bill is dishonored due to insolvency। तो वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब उसके बाद हम लोग एंट्री पास करेंगे for receiving the amount. Okay, that will be entry number 8. So when you will receive cash, मतलब जब भी हमको पैसा आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आया है? 50% आया है, एंड 50% इज बैड डेब्ट। बैड डेब्ट हो गया है, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। टू कहाँ से? प्रियंका से। सो प्रियंका अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹12,000, and here I'll write being only 50% of the total amount could be recovered from her personal state, right? So in this way we have done the bill of exchange sum. I hope student you must have understood. And students, I would like to tell you, in the same channel we are having many sums from other chapter. We are having sums from admission of partner, dissolution of partner. You all are requested to subscribe the channel and go through all the videos. If you like this video, if this video is helpful to you, you just press like icon, or also you can refer your friends
to watch this video so that they can also gain the benefit, because आपको पता है लॉकडाउन का टाइम है और बहुत सारे स्टूडेंट ने तो क्लासेस भी नहीं ज्वाइन किए हैं, तो ये सब वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करके उसकी भी हेल्प कर सकते हैं। सो फाइनली स्टूडेंट्स, आई हैव फिनिश्ड एवरीथिंग ओवर हियर। थैंक यू।